TV serials, drama versus Hindu myths and the law of conservation. So, I was watching a TV drama serial the other day, and I was basically waiting for Shiv Shakti, the show that comes on Colors, and it's a very beautiful show. And I think the stories have been taken from Shiv Puran. So I've been really watching that nowadays and learning a lot from it, because I'm a spiritual seeker on my spiritual journey. And really, it's not like I learn from religious textbooks. I learn from anything and everything. Okay, so but I'm really amazed that our Hindu myths are full of such wise stories. Okay, so and I think I've come to a point where now I can really understand these stories, the stories of Shiv Shakti. So I was watching the TV serial the other day, okay, waiting for Shiv Shakti to come, and in that serial I saw that people are so emotionally reactive in those drama serials. People are basically very emotionally reactive. किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, people can get angry very easily. Okay, it's like it's very normal, for people around them to express anger, and the leads in the show, the hero, the heroine, they take in the anger, like it's just very fine, very normal, to take in the anger of somebody, or somebody reacting that way to you, or even reacting like that. So the both, people who are in communication with each other, they react very impulsively towards each other and everything. Whereas and of course I see that in dramas, in the leads, the hero heroine, what they do is they really repeat the same mistakes again and again in other forms, and they create drama for themselves. It's like drama is basically what? It's a kind of distraction. Okay, it's like you create drama because you want to distract yourself from the reality of your life, and that's exactly what if you're very much connected with your mind, देन आपका माइंड क्या करता है? आपका माइंड आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट करता है जो आपको और दूर लेके जा सके आपके रिप्रेस्ड माइंड से, आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से, जहाँ पे आप देखने को रेडी नहीं हो अपना पेन, अपना आप रेडी नहीं हो देखने के लिए अपने ट्रॉमास, आप रेडी नहीं हो देखने के लिए अपना शेम, अपना गिल्ट, अपने नेगेटिव चीज़ें आप देखने के लिए रेडी नहीं हो। तो वो हमने रिप्रेस माइंड्स बना दिए हैं, और रिप्रेस माइंड से दूर कौन भागता है? कॉन्शियस माइंड बन गया उसके ऊपर। अब कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बहुत। अब देखो, अगर आप 5 मिनट अगर आप बैठो मेडिटेशन में किसी चीज़ में, तो आप क्या देखोगे? यू विल फाइंड दैट it moves in like 100 different directions. Okay, why is this nature of the conscious mind? Because it is the karma that we have built. Okay, हमने collectively as human beings हमने repress minds के ऊपर conscious mind बनाया. conscious mind हमने इसलिए बनाया, मतलब बन गया basically, क्योंकि हम repress mind से दूर भाग रहे थे collectively, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही ऐसी करी गई थी। ठीक है, भगवान से डरो। ओके, और मतलब बहुत ही डर डाला गया हम में, ह्यूमैनिटी में प्रोग्राम किया गया ह्यूमैनिटी को उस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, कि भगवान जी से डरो, और हर चीज़ से डरो यार, किस चीज़ से नहीं डराया गया? तो बहुत ट्रॉमा में डाला गया ह्यूमैनिटी को, उनके अंदर बहुत डर भरा गया, और वो डर हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड्स में आज भी है, राइट। और हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। फ्राइडे को मूवी देखने जाता है, कैफ़ेज़ जाएगा, वी सप्रेस आवरसेल्व्स विद फूड, वी सप्रेस आवरसेल्व्स विद सेक्स, मे बी विल सप्रेस आवरसेल्व्स विद क्लब पार्टीज़, व्हाटएवर। हम एक टेम्पररी इंजॉयमेंट ढूंढेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि हम सप्रेस कर सकें अपने सबकॉन्शियस, अपने अनकॉन्शियस माइंड को। एंड दैट इज़ हाउ वी लिव, वी डाई, वी कम बैक अगेन, वी लिव, वी डू द सेम पैटर्न्स। हम बहुत सारे लोग तो अपने कर्मास को
कर्मास के गो थ्रू ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अपने कर्मा से गो थ्रू करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड बीच में आ जाता है। उनका माइंड जो बहुत सेंस कर लेता है, दैट इट इज़ अ डेंजर सिचुएशन या समथिंग लाइक दिस। हाउ नाउ अ डेज पीपल आर जस्ट नॉट रेडी फॉर टू टेकिंग रिस्क। लोग कितने ज़्यादा कंफर्ट सीकिंग हो गए। कंफर्ट सीकिंग मतलब आप अपने माइंड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन आपका सोल कैसा होता है? सोल इज़ ऑन फायर। अगर आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड हो तो वो आपको रिस्क दिलवाएगा। इट विल मेक यू टेक रिस्क इन लाइफ। अगर आप कहीं ना कहीं अपने अपने सोल से, अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्टेड हो तो आप देखोगे आप ज़्यादा रिस्क लोगे। ओके, आप कंफर्ट नहीं ढूंढोगे, आप डेजर्ट्स नहीं ढूंढोगे हमेशा। ओके, अ माइंड जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स खाता है, ये शुगर्स लेता है, दैट इज़ ऑल्सो दैट यू आर वेरी इम्पल्सिवली समवेयर आप कंपल्सिव हो। ओके, एंड आई वॉज ऑल्सो दैट। मैं यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ बैठ के, बट मैं अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज भी सीख रही हूँ। ओके, एंड बेसिकली जो मैंने आज अभी तक सीखा और मैं आगे अभी भी आई एम स्टिल डूइंग माई स्पिरिचुअल जर्नी। सो या, that's exactly how it works. So so basically where was I was on कि conscious हाँ, कि conscious mind हमें कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है बेसिकली, है ना। और तो उससे पहले मैं कहाँ थी? एक मिनट यार, एक्चुअली मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मुझको याद आ जाएगा। कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करी थी। कॉन्शियस माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट। एंड कॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारे रिप्रेस माइंड से दूर भागता है। ओके, तो मैं ये टीवी ड्रामा सीरियल्स में मैंने ये देखा कि कैसे वो जो एक्टर्स और हीरोइंस हैं या हीरोज़ हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहे हैं, राइट। एक के बाद एक वही कार्मिक लूप में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। और सफरिंग कई बार हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारी खुद की मैन मेड सफरिंग डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, ठीक है। कई बार रियल सफरिंग्स हैं। बहुत सारे लोग मैन मेड सफरिंग में जीते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ऐसे बहुत सारे लोग आपको आसपास मिल ही जाएंगे, ड्रामेटिक लोग जो अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, और ये बहुत ट्रिकी होता है, आप बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे, बहुत ट्रिकी होता है। और ये कितना आप देखते जा रहे हो, लोग कितने कम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, ह्यूमंस कितने कम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, सिंप्लिसिटी से कितना दूर भागते जा रहे हैं। सोल, अगर आप अपने सोल से ज़्यादा कनेक्टेड हो तो आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत सिंपल होगी। आपको ऐसे बहुत सिंपल लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत कम्प्लेक्स अगर अपने माइंड में फंसे हो या समथिंग लाइक दैट, आप देखोगे बहुत अपनी ईगो में फंसे हो और ट्रिकी होते जाओगे। जो लोग अपनी ईगो में फंसे हैं वो तो बहुत ही ट्रिकी होते जाते हैं, ठीक है। वो अपनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को अपने जो अपने इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो वो फील करते हैं, उसे छुपाने के लिए वो सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स में आपको दिखेंगे। आप ऐसे कुछ लोगों को देखोगे वो सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स में दिखेंगे, बट उसका बेसिस क्या है? इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है। तो इन्फीरियरिटी और कुछ लोगों को जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में ही दिखेंगे, ठीक है, वो लिटिल सिंपल है देन सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स में होने से, ठीक है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को एटलीस्ट वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरह तो देख रहा है, ठीक है, बट ठीक है, वो भी कम्प्लेक्सिटी है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो सोल बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड से कनेक्टेड हो तो आप देखोगे ऐसे लोग बहुत कम्प्लेक्स होते जाते हैं। और वही ऑन दी अदर हैंड मैं शिव शक्ति देखती हूँ, एंड आई बीन वॉचिंग दैट, और मुझे बहुत सीख मिल रही है उससे, मुझे बहुत यूनिवर्सल विजडम्स मिलती हैं वहाँ से। एंड मैं वहाँ पर आई एम जस्ट रियली इंस्पायर्ड बाय शिव जी, बाय शिवा रियली। आई मीन ही कैरीज वेरी मच ऑफ मैस्कुलिन एनर्जीज। ओके, शिवा रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज़ को, कृष्णा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं वेरी मच फेमिनिन एनर्जीज़ को। ओके, शिवा इफ़ यू वॉच कृष्णा इज़ अबाउट फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, और मुझे कृष्णा के बारे में बहुत सीखने को मिला दीप त्रिवेदी जी से, ठीक है। और मुझे शिवा के बारे में सीखने के लिए मिला सदगुरु जी से। सो सिंस आई हैव मेनी गुरुज, बट दीज 2 गुरुज हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन माई लाइफ। ओके, एंड मैं कभी उनसे मिली नहीं, नथिंग ऑफ कोर्स, एवरीथिंग हैपन ऑनलाइन। और या सो
बेसिकली मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं, जैसे सो इवन इफ़ यू सी सतगुरु, सो जैसे वो शिवा के बारे में बताते हैं, जो शिवा की एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज़ है। तो वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या हैं बेसिकली, हम आई नो हमने बचपन में वो बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे सुनील शेट्टी वुड कम एंड किक ऑल द विलन्स इन द मूवी एंड he would free the heroine and stuff like that, and we thought he was macho. Okay, masculine energies is not about being macho. Okay, masculine energies are very different. मैस्कुलिन एनर्जीज जो होती हैं वो आपको, क्योंकि इस वक्त मेरी लाइफ में मुझे मेरा सोल गाइड कर रहा है टू ब्रिंग माई मैस्कुलिन एनर्जीज ऑनलाइन. ओके, सो सो हाउ योर मैस्कुलिन एनर्जीज वर्क. मैस्कुलिन एनर्जी सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाएगा. ये उसका एक ट्रेट होता है, ठीक है. सो व्हाट इट विल डू इज़ यू विल रियली सिट, आई मीन okay, so let me take the example of Shiva again. I mean, I have not taken any example, so let me take one example from Shiva. So क्या होता है शिवा की लाइफ में कि देर वुड बी विलन्स. ओके, वो वुड कम एंड वुड वॉर्न हिम, या उन्हें धमकी देंगे कि हम वी वुड किडनैप योर फैमिली, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट टू योर फैमिली एंड स्टफ लाइक दैट. बट ही जस्ट सिट्स स्टिल. वो हिलते नहीं, वो हलचल में नहीं आते, वो टेंशन नहीं लेते. आप देखो टीवी ड्रामा सीरियल और इन सब में लोग इतनी टेंशन ले रहे होते हैं, इतना स्ट्रेस कर रहे होते हैं, और कहीं ना हमें ये नॉर्मल लगने लग जाता है. क्योंकि हम ये देखते हैं, हम रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, और हम देखते हैं यार इट्स ओके टू टेक स्ट्रेस, इट्स ओके टू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स. ओके, कई बार आप देखो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, और फिर क्या आसपास के लोग ना समझते भी हैं कि हाँ चलो इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है ना, इसलिए एंग्री. मतलब कहीं ना कहीं हमने नॉर्मल कर दिया है. तो टीवी ड्रामा सीरियल इसमें देखो आप वही दिखेगा. Whereas Shiva on the other hand, I'm so amazed and learning so much from him. He is very much, he conserves his energy. वो स्ट्रेस में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे. वो एंगर किसी को भी इमोशनली रिएक्टिव नहीं है वो बिल्कुल भी. कोई विलन आके कुछ बोल जाए वो 10 बातें नहीं झाड़ेंगे कि भैया कि वो आके वो विलन आके बोल जाता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. ही इज़ जस्ट सिटिंग देयर. He is just sitting there. He has his eyes closed. Why? Because he waits for the perfect time. He knows divine timing आएगी, इसके पाप का घड़ा भरेगा. और वो कहते हैं ना कि सत्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है. उनको भी वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने ट्रूथ से, अपने सोल से. ही नोज़ हाउ थिंग्स वर्क. उन्हें पता है यूनिवर्स कैसे वर्क करता है. वो बिल्कुल नहीं हिलते यार. वो ही इज़ वेरी मैस्कुलिन इन हिज एनर्जीज. ओके, he doesn't he doesn't get into his fear, he doesn't get into anger. वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते. इवन आप देखो वो अपनी जो फैमिली के साथ होते हैं, दुनिया को बचाने जाते हैं, एंड जब वो इन सब में से कुछ भी नहीं कर रहे होते ना, ही इज़ जस्ट सिटिंग विद आइज क्लोज. ही इज़ सो डिटैच. मतलब he is so calm in himself. He knows how to be still. Okay, और हमें देख लो, हम आजकल इसे नॉर्मल मानने लग गए हैं. कि अगर आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते हो, और इस चीज़ को हम नॉर्मल मानने लग गए हैं. हम इतने कम्प्लेक्स बन गए हैं कि हम इस चीज़ को नॉर्मल, और कोई स्कूल कोई आपको ये सब कुछ नहीं सिखाएगा. ये आपको खुद अपने लिए सीखना है. Nobody, you have to educate yourself. I am also educating myself, and I am coming out here and educating you all from my experiences. I go out on YouTube and see all your videos, take and educate myself through your experiences. So I think it's more of a sharing, okay, and educating each other. So yeah, because I think it's time. काल बुला रहा है. काल हम सबको बुला रहा है. महाकाल हमें सबको बुला रहे हैं. भगवान हमारे प्लैनेट को वापस बुला रहे हैं. ओके, हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माई सोल. नॉट कम्प्लीटली, बट येस. अगर आप देखो, हम सबको देखो तो हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते यार. हम अपने आप को सप्रेस करेंगे विद थिंग्स लाइक दैट. और क्यों सप्रेस करेंगे? हम ट्रॉमास को सप्रेस करते हैं.
ठीक है, हम उसे एन्जॉयमेंट से भरने की कोशिश करते हैं, हम उसे फूड से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम उसे चीज़ों से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और एंड में जाके ना ऐसी कोई ना कोई आपकी शैडो या आपका कोई ना कोई सप्रेस चीज़ रह ही जाती है जो आप बिल्कुल देख नहीं पाते, ठीक है, और वो देखने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं देख पाते, और वो देखने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, आपको बहुत और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन सीखते हो, जब आप सीखते हो कि आपको लेट पीपल मिसअंडरस्टैंड यू, ओके, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेट इट बी, लेट देम बी, ओके, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करो जो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच कर पाते हैं, जो आपको समझ पाते हैं, सो इफ़ कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है आपकी लाइफ से, लेट इट गो, डोंट इंटरफेयर विद लाइफ, ओके, अपनी लाइफ को इंटरफेयर मत करो, डोंट गो आफ्टर एंड चेज एंड क्लिंग टू दीज थिंग्स, ओके, लेट इट बी, जैसे लाइफ फ्लो कर रही है उसे फ्लो होने दो। अगर आपके कर्मास आपके सामने आते हैं, go through those karmas, go through those lessons, okay, I know you might feel fear and stuff like that, and it's completely okay to feel fear, but go through those karmas. I know आपको कॉन्शियसली नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली अपने कर्मास के गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, और अपने कर्मास को रिजिड भी करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। गो थ्रू योर कर्मास कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जियो, देखो आपके कहाँ पैटर्न्स है, शैडो वर्क कीजिए, ठीक है, एंड जो सबसे लास्ट में जो शैडोज़ रहती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो मेरी लाइफ में भी यही हो रहा है कि जो लास्ट की बहुत शैडोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे अंदर, एंड इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू सी इट, बट या सो at that point, law of conservation of energy is very important, not interfering with your life. Don't spend your energy on shopping things that are not needed, okay. Law of conservation of energy is very important to understand, okay. जिस दिन आप, आई नो ये कोई हमें सिखाता नहीं है, और क्योंकि हमें हमेशा ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि ये कोर्स ले लो, ये स्टडी कर लो, ये जॉब ले लो, आपकी हमें हमेशा मनी की तरफ प्रोग्राम किया गया है कि एक मनी क्या है, बेसिकली सर्वाइवल ही तो है कि अपना पेट भर पाओ तुम, ठीक है। हमें मैरिज को भी आजकल लोग सर्वाइवल की तरह देखते हैं, मतलब लिटरली मैरिज इज़ अ चॉइस, इट्स, but people have started to think of it as a security, something like that, okay. I'm not against marriage, but I mean, of course, there could be mixture of things. People desire companionship and yet think that it is a security for them. There could be both the things that are there, I'm not denying that. You can desire companionship but yet think also that the other way. So whatever I am trying to say here is that conserve your energy, don't do things that are not needed, and ये हमें शिवा से सीखना चाहिए। शिवा इज़ वेरी मच मैस्कुलिन एनर्जीज, ओके, और हमें वहाँ से सीखना चाहिए उनसे। तो it's really beautiful. He acts when it is needed, okay. He's so connected to his soul. He is a very simple person. कहते हैं ना, भोलेनाथ और बेलपत्र डालो उससे भी खुश हो जाते हैं। He is very simple. I mean, he's not a person, but he's very simple as a god, okay. And yeah, but humans have gone complex. Complexity comes when you are away from God, सो बहुत सारे लोग हैं, जिससे आपको मैं सेवियर कम्प्लेक्स बताती हूँ। सेवियर कम्प्लेक्स क्या होता है? पीपल कई बार अपनी लाइफ को नहीं देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ की बुराइयों को, अपनी लाइफ की रियलिटी को नहीं देखना चाहते हैं, एंड दे वांट टू गो आउट एंड सेव अदर्स। दैट इज़ सेवियर कम्प्लेक्स। तो कितना ट्रिकी है, कितना कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स बोला जाता है इसे। तो ऐसे बहुत सारे कम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। आप देखो, बाईपोलर डिजीज़ होते हैं लोगों को, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स कम्प्लेक्सिटी। आप जितना जितना भगवान से दूर जाते जाओगे, आप उतनी कम्प्लेक्सिटी में आते जाओगे। जैसे जैसे आप भगवान के पास आते जाओगे, आप उतना उतना ट्रूथ में आते जाओगे, राइट। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी लर्न टू कंजर्व आवर एनर्जीज
फालतू में किसी भी चीज़ में मत पड़ो। इवन योर ओन थॉट्स, आप देखोगे थॉट्स भी कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं इन मैनी वेज। ओके, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो बिल्कुल ही, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। दे जस्ट, योर माइंड जस्ट कीप्स हैपनिंग, यू नो वाई, बिकॉज इट डजंट वांट यू टू सी द ट्रूथ। और आपको कहीं ना कहीं, और ये तो हर एक बंदे का एक्सपीरियंस है, हर बंदा एक्सपीरियंस करता है कि यार मेरा माइंड बहुत चलता रहता है, आई डोंट वांट इट टू मूव, मैं नहीं चाहता इतना ज़्यादा चले। ये हर बंदे का एक्सपीरियंस है कि वो नहीं चाहता उनका दिमाग इतना चले, एंड स्टिल इट जस्ट कीप्स हैपनिंग। आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती रहती है बेफालतू में। ओके, वाई, बिकॉज इट इज़ सम वे योर कर्मा। ओके, आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी एक्सपेंड करी है, क्या अपने कॉन्शियस माइंड को एक्सपेंड किया, और अब वही वापस आपका कर्मा आता है। ओके, आपका माइंड भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, and I am still working on that. I am working on things. Don't get into gossips. Don't get into all these things. Okay, stay on your path. आप literally, आप जैसे जैसे wisdom, मैंने जितनी भी यूनिवर्सल विजडम्स मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ, मुझे वो और बहुत हम्बल करते हैं लिटरली। एंड अगर आपको लगता है कि आप जजमेंट में जा रहे हो, बिकॉज जब आप जजमेंट देते हो आप अपनी एनर्जी किसी को देते हो, ठीक है, आप एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो किसी और के ऊपर। आप वो एनर्जी को अपने आत्मचिंतन पे यूज़ कर सकते हो, आप उसे मनन चिंतन पे यूज़ कर सकते हो, बट आप वो एनर्जी किसी और को दे रहे हो, किसी और को जज करने में दे रहे हो, ठीक है। तो आप किसी और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उनकी लाइफ को समझोगे ना, आपकी जजमेंट्स भी दूर जाती जाएंगी, ठीक है। आपको सच में सच्चा ज्ञान ना बहुत हम्बल करता है लिटरली। और ये हमें कोई बताता नहीं है स्पिरिचुअलिटी को कैसे इन्होंने यूट्यूब पे बना रखा है एंड एवरीथिंग लाइक। बहुत टाइम तक स्पिरिचुअलिटी को बहुत गलत नज़रों से देखा गया, रिलीजन को बहुत गलत नज़रों से देखा गया। रिलीजन तो कभी कुछ था ही नहीं। जो स्पिरिचुअल लीडर्स आए, दे गेव देयर टीचिंग्स, उसको रिजिडली एक रिलीजन में बनाते गए लोग, ठीक है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में आप देखो तो हमें लगता है कि चक्रास खोलना होता है या कुंडली खोलना होता है, ये सब होता है, एंड ये सब होता है ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स फाइन, ठीक है। कई बार आप इन सब चीज़ों, आप ज़रूरी नहीं आपका यही बात हो। मुझे कभी इंटरेस्ट फील नहीं हुआ knowing about chakras or knowing about kundalini. My interest was masculine and feminine, yes, to know about बेसिकली स्पिरिचुअलिटी कोई अचीवमेंट की चीज़ नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हो, आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हो, आप वापस कोर की तरफ जाते हो, आप ट्रूथ की तरफ जाते हो। ट्रूथ ही सिंपल होता है यार। जो आप देखोगे ना, झूठ होता है वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितना ट्रिकी होता है, कैसे हमारा दिमाग हमें कॉम्प्लेक्सिटी में डालता है, कैसे बहाने बनाता है, एक्सक्यूज़ बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एकदम से सुबह उठना है, आपको एकदम से सुबह उठना है, तो क्या करेगा दिमाग आपका दिमाग 100 बहाने बनाएगा। आपकी बॉडी आपको उठने नहीं देगी, क्योंकि वो वैसे प्रोग्राम्ड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी बॉडी भी मेमोरी होल्ड करती है, ठीक है। आपके कर्माज होल्ड करती है, आपकी कार्मिक मेमोरी होल्ड करती है कहीं ना कहीं। तो वो इंट्यूशन, क्योंकि अगर आप अपने ज़्यादा सोल से कनेक्टेड हो गए ना, आप एकदम ही यूनिवर्स की रिदम्स में उठोगे। आप देखोगे आप सुबह जल्दी उठोगे, आई नो हमारे एल्डर्स में बोलते रहते सुबह उठो एंड ऑल ऑफ दैट, but really if you are very much in connection with the rhythms of the universe, you will find that you will wake up early, okay, you will eat um, in a certain manner, आप अपनी बॉडी से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, ठीक है। आप ये समझोगे कि आपको क्या खाना है, आपको कब सोना है, आपका एक सिस्टम बनता जाएगा। तो मोर यू आर कनेक्टेड इन सिंप्लिसिटी विद गॉड, ओके, कम्प्लेक्सिटी से दूर, ठीक है। या तो उस सीरियल में भी मैंने देखा शिवा इज़ वेरी मच वेरी गुड at his masculine energies. He doesn't get into any stupid thing, doesn't get into gossips, doesn't get into gossips भी क्या है, हम डिस्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं किसी और को जज करके, हम अपने आत्मचिंतन से, अपने मनन चिंतन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। हम गॉसिप कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं किसी को, और ये जजमेंट क्यों आती है? लैक ऑफ एम्पैथी से, लैक ऑफ सेंसिटिविटी से। अगर आप किसी की सच में लाइफ समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। आई नो कुछ क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं करा जा सकता है, आई गेट इट, बट स्टिल
और मैं ये नहीं कह रही किसी को जस्टिफाई करना इस बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है, बट या गेटिंग अवे फ्रॉम, आप मतलब आपकी एक्सटर्नल आइज है ना, आपकी इंटरनल आइज, तभी मेडिटेशन में हम आंखें बंद करते हैं, मतलब बाहर जो हो रहा है, आई रिमेंबर मैं बाहर का बहुत सोच रही थी कि बाहर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं बाहर जितना देखती थी मुझे अंदर और डर महसूस होता था, वो मेरे अंदर का डर था, ठीक है, वो मेरे अंदर स्टोर था वो डर, मेरे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में, बट बाहर की चीज़ें देख के वो ट्रिगर होता था कि यार इसके साथ तो ऐसा हो रहा है, क्या मेरे साथ भी ऐसे हो सकता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में एंड एवरीथिंग, तो माई फियर वुड कम अप एंड देन आई हैव टू हील इट। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ज्ञान की तरफ जाती थी, मैं नॉलेज की तरफ जाती थी ना, आई हैड टू रियली हील इट, ओके। सो सो या आप बहुत सारे लोग ऐसे अपनी लाइफ में रोल्स ले लेते हैं, जानबूझ के अपनी लाइफ को भरना स्टार्ट कर देते हैं, इतना बिजी रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और सच नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, बट कभी ना कभी आपको सच अपना देखना ही पड़ेगा। आप छोटे छोटे स्टेप लो, एकदम से नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होते स्पिरिचुअल जर्नी, छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपने माइंड को लेके चलो, यू डोंट हैव टू लूज़ योर माइंड ऑन योर जर्नी, ऑफ कोर्स यू हैव टू शेड योर माइंड, आपको अपना माइंड लूज़ नहीं करना है, आपको अपना माइंड शेड करना है, क्योंकि माइंड एक कम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, आई मीन ऑफ कोर्स इसके कुछ फ़ायदे हैं, और ये तब इस्तेमाल करना चाहिए जब इस्तेमाल करना चाहिए, बट बहुत सी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट हम तब भी करते हैं, तो दैट्स द होल पॉइंट, ओके। आप अपने माइंड को शेड करोगे, अपनी ईगो को शेड करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ व्हाट, आप देखो प्लैनेट पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है वो ईगो डेथ है, ठीक है। ईगो डेथ मतलब क्या है कि हम लोग एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं यूनिवर्स से, जब अपनी ईगो को शेड करते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी मिजरी, मेरे ट्रॉमाज, मेरा ये, मेरी सफरिंग, मेरा जॉब, मेरी सैलरी, mera relationship, when we start to cling on things, when we start to attach ourselves to things, then that is ego. When we identify my religion, my institution, my culture, आप इतना ज़्यादा उसके अंदर हो जाते हो, इतना ज़्यादा। आप देखो सीरियल किलर्स कैसे बनते हैं यार, कोई ना कोई ट्रॉमा होता है उनका, ठीक है, एंड दे स्टिक टू देयर मिजरी, दे स्टिक टू देयर ट्रॉमा सो मच दैट इट टेक्स another form, it takes a form of another stuff. So that is exactly what I'm trying to tell here, कि when you go through an ego death, आप कहीं ना कहीं एक महसूस करते हो एक कनेक्शन विद द यूनिवर्स, ओके। ऐसे ही आप जैसे जैसे अपनी माइंड जो कम्प्लेक्स है, माइंड हमेशा कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा। व्हेन यू शेड दैट पार्ट, आप कहीं ना कहीं अपनी सोल में आते जाओगे, अपने आत्मा की तरफ बढ़ते जाएंगे। यस, दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैपन्स। मैंने पहले भी बोला है, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट कमिंग होम। आपको ऐसा लगेगा आप कोई अचीव कर रहे हो, आप कुंडलिनी खोल रहे हो, आप थर्ड आई चक्र ओपन कर रहे हो, नहीं, ऐसा लगेगा आपको कि आप घर आ रहे हो, आपको सुकून महसूस होता है, ठीक है। और ये जो सब चीज़ें हैं ना कि थर्ड आई ओपन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब अपने आप कॉन्सिक्वेंस है उसका, ठीक है, बट आप सच की तरफ बढ़ रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी है। आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी है यार। सो आई वॉज जस्ट सो अमेज्ड कि हमारे हिंदू मिथ्स में कितनी वाइज स्टोरीज़ हैं, और हम आज तक कभी कोई पढ़ी नहीं हमने, मैंने कभी स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी, एंड दिस सच वाइज स्टोरीज। Shiva is such an intelligent god, he is so much, connected with his stillness, he is so much connected with his core। उन्हें कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है वो कौन है, ठीक है। he doesn't emotionally react to people, okay। और उन्हें लोग उत्तेजित भी करते हैं, कुछ लोग आके कि हमारे से फाइट करे, ये करे, वो उत्तेजित कभी नहीं होंगे, वो कभी हिलते नहीं हैं, ही सो स्टिल, स्टिलनेस रिप्रेजेंट्स मैस्कुलिन एनर्जीज, फ्लो, लाइफ का फ्लो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जीज़ को। ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होते हैं, और ये कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गई है राइट नाउ ऑन द प्लानट, ओके। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ ऑन द प्लानट इज ऑल अबाउट balancing the two at the end of the day. So yeah, that was my video for today. I hope you liked the video. Let me know in the comment section if you have something to share regarding this topic. Would love to hear it. Thank you.